हेलो इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम हमारे न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म बेस्टियन कोर के बारे में बात करेंगे। आई विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू दी प्लेटफॉर्म एंड लेट्स ट्राई टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. So you can simply get access to Bastion Core by typing Bastion Research. I'll directly take you to the Bastion Core page. So जब आप Bastion Core page पर जाएंगे, so you will get the introduction about Bastion Core. Now what is important to understand here is कि Bastion Core को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है. Bastion Core is divided into two parts. First is what we call as Bastion Spotlight, where we explore companies in great depth as well as provide tracking of companies for the active universe which we have created, which I'll show you in great detail when we explore Bastion Spotlight. So Bastion Spotlight is where हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे हम एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट प्रिपेयर करते हैं और उसकी इनसाइट्स हम यहाँ पर रखते हैं. सो दैट इज बेस्टियन स्पॉटलाइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेस्टियन स्पॉटलाइट. तो जब भी आप बेस्टियन स्पॉटलाइट के पेज पर विजिट करोगे, so if you are a non-subscriber, you won't be able to see the name of the company, and also you won't be able to see whether the team has given a preferred seal to that company or not. Things which you will be able to see is what is the coverage status, what is the initiation date, as well as the sector in which that company belongs. However, even if you are a non-subscriber and want to check the quality of output which we generate, want to check the way in which the output gets generated, want to check how the quarterly updates are being provided, we have kept one company, which is PSP Projects, out of the paywall for you to see it as a sample project which we have done. Correct? Coming to the inactive universe. अब inactive universe बनाने के पीछे का रीजन सिंपल है. ऐसी कई सारी कंपनीज हम डे इन डे आउट पढ़ते हैं जिसपे हम बहुत अच्छे लेवल का काम कर चुके होते हैं, बट फाइनल स्टेप्स में ड्यू टू सम और दी अदर रीजन हम वो कंपनीज को रिजेक्ट कर चुके होते हैं. अब इतना अच्छा काम कर लेने के बाद व्हाट वी बिलीव इज टू शेयर आवर नॉलेज विथ आवर सब्सक्राइबर्स. तो अब एक कंपनी पर अच्छा काम हो चुका है बट ड्यू टू सम रीजन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उसका जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं हमारे इनएक्टिव सेक्शन के अंदर. फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द यूनिवर्स is just a education section where our subscriber can visit, read our business understanding note on various companies, gain insights into the business of those companies, gain insights into the sector in which those companies operate, as well as gain a fundamental understanding of how that particular business operates. I'll reiterate, these are the companies which we have worked in great depth on, but due to some or the other reasons, have decided to reject these companies. Now coming back to Active Universe, so हम हमारे सैंपल प्रोजेक्ट के साथ ही इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे. सो पीएसपी प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने कहा कि दैट इज आउट ऑफ द पेवॉल. अगर किसी को इस हमारा रिसर्च आउटपुट, हमारे रिसर्च क्वालिटी को चेक करना है तो वन कैन सिंपली व्यू रिसर्च. तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जहां पर आपको पीएसपी के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी. द नेम ऑफ द कंपनी, क्या सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है, क्या इंडस्ट्री में कंपनी बिलोंग करती है, मार्केट कैप क्या था जब हमने उसको इनिशिएट किया था, किस डेट को हमने इनिशिएट किया था, क्या प्राइस थी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस मेन टेबल यू विल फाइंड अदर 3 टेबल्स. द फर्स्ट टेबल डायरेक्टली सेज कि ये एक क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट्स का टेबल है. यहाँ पर एज एंड व्हेन रिजल्ट्स कम वी विल शेयर अवर व्यूज. यहाँ पे पीएसपी के एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने हमारा लेटेस्ट रिजल्ट के बाद का एक क्वार्टरली अपडेट ऐड किया हुआ है. And then there are other 2 tables which are kept just like that as of now, but eventually as a part of our plan we are planning on doing certain activities pertaining to the active coverage list which we have built, but these tables as of now have no value, right. तो अभी के लिए हम फोकस रखेंगे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट पर और क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट्स पर. तो जब हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट को ओपन करते हैं
तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड पीएसपी प्रोजेक्ट्स को समझाता हुआ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक 19 पेजर नोट है, राइट, जिसमें से पहला पेज तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन पेज, द कवर पेज यू कैन से। सेकेंड पेज पे हम हमारा कोर प्रेफर्ड सील हमने किसी कंपनी में प्रोवाइड किया है या नहीं वो शेयर करते हैं। सो हाउ वी हैव मेड दिस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट इज सिंपल। इस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं द कोर सेक्शन, राइट। नाउ द कोर सेक्शन इज फॉर दोज पीपल जिनको पीएसपी प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छा आइडिया है, बट सिर्फ हमारी थीसिस, हमारे रैशनल्स और हमारे रिस्क पॉइंटर्स जानना चाहते हैं। कोर सेक्शन उन्हीं के लिए है जिनको कंपनी के बारे में ऑलरेडी आइडिया है। नाउ जिनको कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है, उनको कोर सेक्शन के साथ साथ एक दूसरा सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हम लोगों ने बिजनेस मॉडल को कंप्लीट डेप्थ के अंदर समझाया होता है, राइट। सो अगर कोई भी अब हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट ओपन करेंगे तो फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। देयर विल बी अ कोर सेक्शन which will be only and only for people who know that business, right, at a certain level and want to just understand our rationales behind covering that business. And for those people who are reading this a business from scratch, उनके लिए core as well as supplementary section दोनों relevance का रहेगा। Now coming back to the first page, which is whether we have given a core preferred seal or not. So in PSP's case, we have provided a core preferred seal to this company क्योंकि ये जो रीजंस हैं, जो हमारा स्मार्ट फ्रेमवर्क है, वो स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंडर हम लोग जो भी रीजंस कलेक्ट कर पाए, हमारी थीसिस जो स्मार्ट फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी, बेस्ड ऑन दैट थीसिस एंड आवर जजमेंट रिगार्डिंग पीएसपी प्रोजेक्ट्स, हमें लगता है कि पीएसपी प्रोजेक्ट इज अ कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट जिसको हम हमारे सब्सक्राइबर्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन अ सील। स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंदर भी हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं। अगेन स्मार्ट फ्रेमवर्क किसी को समझना है, व्हाट एस स्टैंड्स फॉर MART, व्हाट ईच एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर, अगर किसी को समझना है, वन कैन गो टू द यूट्यूब वीडियो अंडरस्टैंड द स्मार्ट फ्रेमवर्क इन डेप्थ, राइट। हम लोगों ने यूट्यूब पर काफी डिटेल में इसको समझाया एंड लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट। तो स्मार्ट फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या क्या पॉइंटर्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे कोर प्रेफर्ड सील दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, report is divided in two sections. First is the core section where we give you a brief about what the company is all about, the introduction, what is the current market price, some basic information here, what makes the case for that company, which is nothing but our rationales, why we like this company. At the same time, we also try to share our understanding of what can threaten our case. So this section is nothing but the potential risks in our understanding which the business can face, right। उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं our understanding on valuations। Obviously जब हम valuations की बात करते हैं, there is always projections which are involved और हर एक projection के पीछे there are assumptions, so we try to transparently portray our assumptions as well कि revenue पे हमने किस तरीके का assumption लिया, margin पे हमने किस तरीके का assumption लिया, exit multiple पे हम किस तरीके के assumptions ले रहे हैं, so that our reader, our subscriber can have a clear view on the kind of projections which we have made. उसके बाद हम आ जाते हैं the supplementary section or the non-core section. Now again, when I use the word non-core, this does not mean it's not important. We believe it's a very important section for people who are trying to understand a particular business from scratch. अगेन जिनको बिजनेस का आइडिया है वो कोर सेक्शन पढ़ सकते हैं, बट जिनको बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल यूजिंग अ इंफोग्राफ व्हिच बिकम्स इजी फॉर आवर सब्सक्राइबर टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली कुछ अगेन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की ही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर की है, हिस्ट्री को कवर किया है, कुछ एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल जो हमको लगा इस कंपनी के अंदर
मैच हो रहा है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है. नाउ अगेन द फॉर्मेट ऑफ दिस सेक्शन कैन चेंज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बिकॉज आप समझेंगे कि और आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग चीजों को कवर करना जरूरी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस लाइक पीएसपी प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर ऑर्डर बुक और उसकी डिटेल्स को कवर करना बहुत जरूरी है. उसका ऑर्डर बुक मिक्स किस तरीके का है, मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है. बट इफ वी ट्राई टू कवर अ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, उनके लिए मैट्रिक्स काफी डिफरेंट होंगे, उनके लिए sections of the report will be very different. So these sections are not sacrosanct, will change as per the company, but the format of the non-core section will more or less look like this, which will give you a clear cut understanding of कि बिजनेस किस तरीके से चलता है और वो बिजनेस के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए. बाद में लास्ट में अगर हम आ जाए, लास्ट के 2-3 पेजेस की अगर हम बात करें, तो दी फॉर्मेट अगेन बिकम्स स्टैंडर्डाइज, जहां पर हम लोग अगर कंपनी ने कोई गाइडेंस दी होती है तो वी मेक श्योर दैट वी हैव अ गाइडेंस टेबल एट द एंड सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, जहां पर हम वेरियस एस्पेक्ट्स के अराउंड मैनेजमेंट की गाइडेंस को शेयर करते हैं कि गाइडेंस किस लाइन आइटम के रिलेटेड है, एट द सेम टाइम गाइडेंस क्या है. After the guidance point, another standardized section which we have created, which we believe is very important, is the key performance indicator and investors should track. Now, every time you track various companies during a quarter, it's always handy to have key performance indicator at your disposal, जो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका दे सकते हैं कि मुझे एक रिजल्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है. So that headache is also something which we have taken for our subscribers. जो भी कंपनीज हम कवर करते हैं उसकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है और वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ट्रैक क्यों करना चाहिए, वो हम लोगों ने ये सेक्शन के अंदर दिखाया हुआ होता है. Lastly, our report ends with our view on that particular company कि okay fine, we have detailed coverage on this report, we also have guidance, we have KPIs, we have multiple aspects which we have shared above. So this is the condensed view of all the information which is provided above कि हम क्या सोच रहे हैं कंपनी के बारे में at the end of our research, right? So I think this sums up all you need to know about our business understanding note. इसी तरीके की business understanding note होगी सारी कंपनीज के लिए, right? Obviously the mid section जहां पर वो चेंज होगा बिजनेस टू बिजनेस, बट वी हैव ट्राइड टू कीप all the things standardized जो हम कर सकते थे. There are a few things which can't be standardized and makes no sense to be standardized. उनको हम लोगों ने standardize नहीं रखा है. So now after understanding the contents of the business understanding note, the idea behind structuring the business understanding note in a certain way, हम दूसरे important aspect की तरफ आते हैं which is the quarterly result updates, right? तो अभी जैसे कि आपको पता है कि Q4 FY24 जो FY24 का लास्ट क्वार्टर है वो अभी खत्म हुआ है एंड ऑल द कंपनीज हैव मोर और लेस announced their results, right? So again, our sample company which we are using for discussion for today is PSP Projects. तो उसने भी अपना रिजल्ट likewise अनाउंस कर दिया है. तो हमने उसकी एक क्वार्टरली अपडेट रिपोर्ट बना करके भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दिया, तो हम उसको देखेंगे अभी. So if you see the quarterly update report, again the first page is the poster, right? सेकेंड पेज यहाँ पर से सारी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है. तो फर्स्टली व्हाट वी हैव ट्राइड टू कवर इज वी हैव ट्राइड टू कवर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की नंबर्स जिस तरीके की कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, हेडलाइन नंबर्स जो कि है विच इज रेवेन्यू, वेरियस कॉस्ट्स, हाउ हैज बीन द मार्जिन एटसेट्रा. तो एक पूरा पीएनएल का स्नैपशॉट क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, एज वेल एज फॉर द फुल ईयर ऑफ FY23 वर्सेस FY24. तो पूरा का पूरा पीएनएल का स्नैपशॉट हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है. नाउ आफ्टर I'll just zoom a little bit for everyone to be comfortable. Yeah. So after covering the numbers aspect of it, numbers सिर्फ देखने से कुछ पता नहीं चलता है. You also have to give the story behind the numbers. So that is what we have tried to do कि जो वॉल्यूम डिग्रोथ इस साल आया, इस क्वार्टर आया YOY बेसिस पे, या जो मार्जिन आए या मार्जिन में जो मूवमेंट आया वो क्यों आया, किस वजह से आया,
क्या रीजंस है उसके पीछे. सो वी हैव जस्ट गिवन अ हाईलाइट इन अ फ्यू पॉइंटर्स डाउन हियर कि रिजल्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उस रिजल्ट्स के पीछे की हाईलाइट्स, दी स्टोरी बिहाइंड दिस रिजल्ट, क्या एक्टिविटीज की गई है या क्या आउटकम्स आए हैं जिसकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट पैन आउट हुआ है. तो वो हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट हाईलाइट्स में दिया है. नाउ there are key operational information which are required to be given in each business. Now again this will vary from business to business. So PSP के केस में अगर आप देखें तो outstanding order book, order inflow, order book to revenue, these are important aspects which one should cover from time to time. राइट, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है एक ईपीसी बिजनेस के अंदर. तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर बुक, उसका ट्रेंड, ऑर्डर इनफ्लो अगेन उसका ट्रेंड, एंड द ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो अलोंग विद इट्स ट्रेंड को यहाँ पर हमने मेंशन किया है. नाउ जैसा कि हमने लास्ट हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट के अंदर देखा, देयर वाज अ सेक्शन कॉल्ड केपीआईज, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ केपीआईज बना रखे थे. उन केपीआईज को ट्रैक करना इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्यों जरूरी है वो हम लोगों ने बना रखा था. राइट, तो उसी केपीआईज को कंटिन्यू करते हुए वो केपीआईज के रिलेटेड ये क्वार्टर में क्या अपडेट दिया है कंपनी ने, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट आउट करने की कोशिश की है. अगेन अगर आप रिकॉल करें तो वहां पर हमारे पास 8 केपीआईज थे. वो केपीआईज क्या क्या थे वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है. एंड अवर कमेंट्स रिगार्डिंग द अपडेट ऑन दोस केपीआईज की रेवेन्यू एग्जीक्यूशन ग्रोथ जो हम लोगों ने सोचा था उस तरीके का आया है या नहीं, प्रोजेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर क्या अपडेट्स है, कोई अनरिलेटेड फोरेज है या नहीं, एंड मल्टीपल सच थिंग्स जो हमने यहाँ पर कवर किए. सो दिस बेसिकली गिव्स आवर सब्सक्राइबर अ सेंस की जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट मैंने पढ़ी थी उसके अंदर जो केपीआईज हाईलाइट किए गए थे वो केपीआईज का प्रोग्रेस किस तरीके का है, उस पे क्या अपडेट है, सो दैट वन कैन हैव एन ऑब्जेक्टिव व्यू कि उनको इस कंपनी के साथ अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है या प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो उसको किस तरीके से वो देख सकेंगे. And last part of, so the second last part rather of this section is again the con call highlights. अब con call highlights is nothing but conference call companies हर बारी करती है every quarter. वहां पे कंपनीज कुछ ऐसे अपडेट्स देती है जो नंबर्स में नहीं दिए जा सकते हैं या लिख करके नहीं दिए जा सकते हैं. जो कोई एनालिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे इंसाइटफुल क्वेश्चंस कई बार एनालिस्ट पूछते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उसका बखूबी बहुत अच्छे से जवाब भी देते हैं. तो उसकी जो अपडेट्स है वो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट्स यहाँ पर कैप्चर की हुई है. लास्टली हम गाइडेंस की बात करते हैं. अगेन दिस विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. जो कंपनी में गाइडेंस मिलेगी उस कंपनी की गाइडेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है. एंड फाइनली लाइक वी एंडेड अवर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नोट, हम हमारी क्वार्टरली अपडेट को भी एक अपडेटेड व्यू Q4 FY24 के रिजल्ट के बाद हमारा अपडेटेड व्यू पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर क्या है उसके साथ एंड करेंगे. राइट, विच इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ, इट्स जस्ट द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी हैव शोन अबव. करेक्ट. So this is basically the summation of our quarterly update which we aim to post from our active list of companies. So I think we have covered both the important aspects of each of one company called PSP project in depth. हमने business understanding notes, उसके contents, why a particular content makes into the business understanding note वो समझा. उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स के अंदर क्या क्या आपको मिल सकता है, वो क्यों वहां पर रखा गया है, उसके बारे में थोड़ी हमने बात की. नाउ अगेन कमिंग रीआइटरेटिंग द पॉइंट कि ये जो दूसरे दो सेक्शंस है, वी आर प्लानिंग समथिंग ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स एंड विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू एट द राइट टाइम कि हम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं. तो नाउ आई थिंक हमने हमारा जो पहला सेक्शन है विच इज दी बिजनेस स्पॉटलाइट, उसको हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है कि बिजनेस स्पॉटलाइट में क्या क्या चीजें हैं, एक कंपनी के रिलेटेड आपको किस तरीके की अपडेट्स बेस्टियन टीम की तरफ से दी जाएगी. राइट, एंड वो अपडेट्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्यों रखी गई है. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट इन गुड डेप्थ हियर. Last but not the least, I would invite all of you to come and subscribe to Bastion Core. We are committed to provide the best services to all our subscribers, right? And we will continue to push the envelope higher and higher.
This is just the beginning. It's just been 2 months, and we believe we have been able to pull off reasonably good amount of work, and we aim to continue doing so in the months and years to come. Thank you for listening. I again invite all of you to subscribe to Bastion Core and be a part of our community. Thank you.